Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel Online Physics by Renu Sharma. Today, we are going to do the chapter first, Electric Charge and Fields of Class 12 Physics, and the topic is Continuous Charge Distribution. What is the reason that we are moving from discrete nature of charge to continuous nature? Okay, here we are moving from discrete to continuous nature. Okay, and what is the difference between these two? At discrete level, it is microscopic level. Here we can say that we are able to count the number of charges or how many charges are present. So it will be at microscopic level. Discrete nature, that is countable. Individual entity is present here. But when we consider continuous nature, we deal with macroscopic level. So for macroscopic level, what I require, I will just say that we change the concept from microscopic to macroscopic. That means we are changing from discrete to continuous nature. That means here I am able to count the number. For example, I am having few crystals of sugar. I am able to count the number of crystals of sugar along with me, whether they are 10 or 15 or 20, whatever. I can just count them. So it is discrete nature. Individual entity of crystal is there, so okay, it is discrete nature. When I talk about continuous nature, that simply means that I am having some sugar, and it's not possible for me to count the number of crystals of that sugar, so I will move to measure them in grams. Okay, so whether it is 100 gram or 250 gram, so I change the quantity in which I measure. So here I switch from discrete to continuous nature. Discrete nature में we can easily calculate the number or count the number of particles or crystals, whatever we are having. But here at continuous nature, at continuous level, we just switch to some other quantity because number of particle is more now. Okay, so similarly in the case of charge, we'll see that okay, चार्ज और क्वांटाइज्ड नेचर भी नो डॉट क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है. चार्ज क्वांटाइज्ड होता है नेचर में, दैट्स ओके. चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी नो दैट. बट as we are moving from microscopic level to macroscopic level, okay, we will introduce few new terms, and these terms are charge density. Okay, so let's move further. In continuous charge distribution, we will study about various types of charge density. The first is linear charge density. Linear charge density एग्जाम में बहुत रेयर पूछते हैं इसको, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो हमें यूज करना पड़ता है डेरिवेशंस में. सो वी हैव टू स्टडी इट. ओके, सो linear charge density symbol is lambda. Okay, so it is defined as the charge distributed per unit length of the conductor or wire, we can say that. Okay, so here denoted by lambda. Lambda is equal to delta Q upon delta L. Lambda is linear charge density, charge per unit length. If I am having a wire, okay, and suppose plus charge is there all over the surface, so how will we able to find out the lambda linear charge density? That is equal to delta Q by delta L. We will just find out the small length delta L. We will just find out the value of charge, small charge over this portion. Okay, that how much charge is there, and then it is delta Q, length is delta L. So we will just divide delta Q by delta L, then we will be able to find out the linear charge density lambda. And what is its SI unit? SI unit is coulomb per meter. Charge is having unit coulomb, length is having unit meter. So SI unit of linear charge density is coulomb per meter. Okay, now come to second point. Here second is, in the first case we have studied about linear charge density. In the second case, we will just study about surface charge density. Okay, surface charge density.
and the symbol is sigma. Again in the similar manner, just like the before, just like lambda, we will just define sigma also. So we will say that it is defined as the charge distributed per unit surface area of the conductor. For example, now we are having a sheet. Okay, we are having a sheet having surface area, we can say that S. Okay, so charge here is Q. चार्ज हमने क्या लिया है यहाँ पर, हमने चार्ज लिया है यहाँ पर Q, है ना. टोटल चार्ज हमारे पास में Q था. तो इतने बड़े सरफेस शीट पे हम स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं और इसका एरिया हमने ले लिया डेल्टा S. चार्ज कितना ले लिया इस सरफेस का, डेल्टा Q. तो सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा S. दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया करेंगे तो एंटायर का हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, थ्रू आउट द कंडक्टर यूनिफॉर्म ही होती है. चाहे आप वायर लो, चाहे आप शीट लो, चाहे आप कोई 3 डायमेंशन फिगर लो, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर. तो नाउ द यूनिट ऑफ दिस सिग्मा इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा इज हैविंग यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर. C for कूलम एंड सरफेस एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है. तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड हमारे पास में आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. द सिमिलर मैनर, इसका सिंबल हो गया रो हमारे पास में, लैम्डा हो गया, सिग्मा हो गया, अब इसका रो हो गया. ठीक है, तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम. तो अगेन इट इज डिफाइंड एज द electric charge or charge, we can say charge distributed per unit volume of the conductor. मोस्टली हम लैम्डा या फिर सिग्मा यूज़ करते हैं, रो बहुत कम यूज़ होता है हमारा. पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी रो के ऑफ क्या आएगा, रो का एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V. ओके, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V. अगेन सपोज आई एम हैविंग अ स्फेयर. ठीक है, मेरे पास स्फेयर है. अब स्फेयर मैंने सॉलिड स्फेयर ले लिया, तो उस केस में चार्ज, टोटल सरफेस का चार्ज हमारे पास में मैंने Q ले लिया और वॉल्यूम को V ले लिया. तो स्मॉल सरफेस का चार्ज और स्मॉल जो हमारे पास में सेगमेंट में ले रही हूँ, तो उसका हम अगर वॉल्यूम डेल्टा V लेते हैं और इसमें चार्ज हम डेल्टा Q लेते हैं, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा V का जो रेशियो होगा दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ओके, एंड इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब. So here we have done the 3 types of charge density. The first was linear charge density, second was surface charge density, and the third is volume charge density. Okay, now come to Gauss's law of electrostatics. It's very important topic. एग्जाम में स्टेटमेंट बहुत बार आती है. ठीक है, Gauss's law of electrostatics. Yeah. It states that इम्पॉर्टेंट है उसकी, और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत बार एग्जाम में आती है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम मोस्टली कहें तो इसका स्टेटमेंट आ जाता है 1 मार्क में, और जो इसका एप्लीकेशन है वो 3 मार्क्स में बहुत बार एग्जाम में आपको मिलेगा. तो इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. यानी कि हम सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपसे कहें कि फाई हमारा बेटा फ्लक्स का सिंबल होता है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये किसने कहा था, गॉस ने कहा था, साइंटिस्ट से गॉस. तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट अगर मेरे पास कोई भी मैंने सरफेस ले ली, गॉसियन सरफेस ले ली, अब इसमें चार्ज हमने कहा Q है. ठीक है, तो जो उसका फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बेसिकली हमें बताता है दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू यूनिट सरफेस एरिया. ठीक है, तो इस कंसेप्ट से पहले मैं आपको एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे. ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the number of electric field lines passing through unit surface area. ठीक है. फाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है ई डॉट एस. ठीक है. तो अगर मैं कहूँ मेरे पास ये सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसमें से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, पास कर रही है. तो सरफेस एरिया मेरा एस हो गया और ई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके. तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एट. एट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स. सो हेयर आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा कि दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू और इमर्जिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया. ओके. पासिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर भी जा सकती हैं, बाहर भी आ सकती है. ई डॉट एस. तो फ्लक्स जो है हमारे पास में, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया. ठीक है. इन दोनों का ये हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. और इसको हम फाई को, ठीक है, तो फाई हमारे पास में हो गया स्केलर क्वांटिटी. यूनिट क्या होगी फ्लक्स की? ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा यूनिट हमारे पास में होती है इसकी ई की होगी न्यूटन पर कूलम और सरफेस एरिया की होगी मीटर स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके. इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. डन. तो हमारे पास फाई का फॉर्मूला ई डॉट एस हो गया. ये स्केलर क्वांटिटी हो गई. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना पास करती है यूनिट सरफेस एरिया से, उससे हम इसे मेजर करते हैं. तो गॉश जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे कह दिया है डैट फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इसके लिए हम इसका प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ अभी सिलेबस में है नहीं आपके, बट स्टिल इसको समझने के लिए वी विल गो फॉर प्रूफ. ओके. सो फॉर प्रूफ हम क्या करने वाले हैं, हेयर आई एम हैविंग अ स्फेरिकल शेल. ठीक है. अब शेल है तो अंदर से क्या होगी, खाली होगी. अब हमने इस पर चार्ज दिया क्यू चार्ज दिया. इसका रेडियस हमने ले लिया है आर. ओके. आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल और दिस स्फीयर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस कितना होगा, ई की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू. अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये प्लस क्यू चार्ज हमने लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड होगी. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो और यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स पे देखो रेडियस सेम रहने वाली है, चार्ज सेंटर पे है, तो ई की वैल्यू पूरे सरफेस पे सेम रहने वाली है. अब हमने क्या किया, हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, इसमें से सरफेस एरिया ले लिया हमने और इसको हमने नाम दिया डेल्टा S1. ठीक है. डेल्टा S1 हमने सरफेस एरिया को, स्मॉल सेगमेंट को नाम दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी वही होगी. ओके. हमने सरफेस एरिया ले लिया जी. ओके. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ई हो जाएगा हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर और वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई. फ्लक्स, ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सरफेस डेल्टा S1 कितना हो जाएगा, इसको मैंने फाई 1 दिया, फाई 1 हो जाएगा ई डॉट डेल्टा S1. क्योंकि इस पर वैक्टर नहीं लगाते हम, यहाँ पे एन कैप लगाते हैं, क्योंकि एन कैप जो होता है वो यूनिट वैक्टर होता है जो कि सरफेस एरिया से नॉर्मल होता है. क्योंकि सरफेस एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है. पीछे भी एक बार ठीक कर देते हैं उसको. यहाँ पे ये एस लिखते हैं ना, तो इसको लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन ये ई डॉट एस एन कैप होता है. एन कैप इज अ यूनिट वैक्टर, बिकॉज सरफेस एरिया को हमेशा एस वैक्टर लिख दो, लेकिन ये एस एन कैप ही होता है. दैट मीन्स हमारे पास में ये यूनिट वैक्टर होता है जो कि सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर होता है. तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है. नाउ कम टू दिस. तो फाई 1 है हमारे पास में ई डॉट डेल्टा S1 एन कैप, ये हमारे पास फाई 1 है. सिमिलर मैनर में अगर मैं कहूँ कि दूसरा सरफेस ले लिया मैंने, इसका एरिया डेल्टा S2 था, तो फाई 2 कितना आ जाएगा, फाई 2 हो जाएगा ई डॉट डेल्टा S2 एन कैप. सिमिलरली करते करते अगर मैं उसको बहुत सारे सरफेस में डिवाइड किया तो एन सरफेस ले ली, तो एनथ सरफेस एरिया का जो फ्लक्स होगा